Come with me. प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता Lord Jesus Christ, यीशु मसीह, Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा खुदा के, we come before you, O Triune God. हम आपके सम्मुख आते हैं त्रिदेव। Lord, as I open the book of 1 Timothy, Lord, जैसे हम पहले तीमुथियुस की किताब खोलते हैं, Lord, let this never be a time of words, Lord, ये सिर्फ ऐसे शब्दों का समय न हो, because your word says, Lord, क्योंकि आपका वचन ऐसे कहता है that you are wearied by too many words, Lord. कि आप ऐसे बहुत सारे शब्दों से ऐसे परेशान हो जाते हो। But Lord, लेकिन प्रभु, let this be a time, Lord, लेकिन ये एक ऐसा समय हो where your people would be able to love you, Lord. जहाँ आपके लोग आपसे प्यार कर सके, They would be able to know your true presence, Lord. वो आपकी सही उपस्थिति को जान सके। I make this prayer in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today I'll start with the book of 1 Timothy. आज हम पहले तीमुथियुस की किताब में से सीखने वाले हैं। So it's very, very important to know who was Timothy ये जानना बहुत ही जरूरी है कि तीमुथियुस कौन था and something about this background. और उसके ऐसे इसके पीछे जो इस जीवन के बारे में। So Paul was Timothy's hero. पौलुस जो था वो तीमुथियुस के लिए एक हीरो के समान था। So let us go to Acts chapter 16. प्रेरित 16 में जाते हैं। Uh, 16 verse 1. 16 का 1 पढ़ते हैं। फिर वह दिबेर और लूस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नामक एक चेला था, जो किसी विश्वासिनी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। Okay. This is the first time that Timothy is mentioned. ये पहली बार है जहाँ पे तीमुथियुस का ऐसे जिक्र किया गया है। And if this was any other religious place, I would probably make some statement or do some religious comments about Timothy and then move on to teach you about how we need to lead the church and how this church needs to be effective. But it's very important to know the historicity and the background of Timothy. ये बहुत ही जरूरी है कि हम पहले यह जाने कि तीमुथियुस का इतिहास क्या है, वो कहाँ आता है इतिहास में, और सारी चीजें उसके बारे में। ऐसे नहीं कि उसके बारे में सिर्फ एक दो शब्द कहकर आगे बढ़े। And it's very important to know the book of Acts. प्रेरित के किताब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So time and again we will have to go back to the book of Acts. So it's good that you bookmark this place or you have something for you to go back to this book of Acts. बार-बार हमें प्रेरित की किताब में ऐसे वापस जाना पड़ेगा तीमुथियुस के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में देखने के लिए, तो इसलिए अपना उंगली वहाँ पर रख दीजिए ऐसे। So this is, I will start, before I go to Timothy, I want to start with Paul's missionary journey. पौलुस कैसे ऐसे प्रचार करते हुए आगे बढ़ता गया, पहले हम वो सीखेंगे। So that you are able to appreciate this mention of Timothy in chapter number 16 of Acts. प्रेरित 16 में पौलुस ने यहाँ पे तीमुथियुस के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में जानने के लिए पहले हमने पौलुस ने क्या क्या कार्य किए, वो कहाँ गया प्रचार करने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। So the book of Acts starts after Paul's ascension and it mentions everything about Paul's ascension and how he was converted. पौलुस कैसे बदला, वो कैसे यीशु मसीह में आया, वो सारी चीजों से जिक्र होता है, चालू होता है प्रेरित का किताब। And roughly 14 years after his time in the desert, 14 साल जब उसने रेगिस्तान में से समय बिताया, he made this first missionary journey. वो अपनी पहली यात्रा पे निकला। So Paul made at least 3 missionary journeys. पौलुस ने ऐसे 3 ऐसे यात्राएं की। And just for you to understand, I've just mentioned the first missionary journey. पहले के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया So है। once you understand the first missionary journey, you'll be able to understand his roots, where Paul went, where he met Timothy. पहली यात्रा के बारे में जब आप जानोगे तो आप ये समझोगे कि वो कैसे आगे बढ़ता गया, तीमुथियुस उसको कहाँ मिला ये सारी यात्राओं में। And very critical to understand that the book of Acts mentions Antioch. और बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि प्रेरित की किताब में ऐसे एंटियोक के बारे में जिक्र किया गया है। So we see that there is 2 Antiochs. One is Antioch in Syria. 2 एंटियोक है यहाँ पर अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो। And there is one Antioch in Syria. एक और एंटियोक है
that is the Syria of Gentiles. That is called the Gentiles, Gentile land particularly. अन्य जातियों का जो स्थान है वहाँ पर भी एक एंटियोक है। And the Antioch is in Syria. सीरिया में जो एंटियोक है, It's a very important place because all our early fathers met at Antioch, which is in Syria. क्योंकि पहले के जो कलीसिया के लोग थे वो सारे के सारे एंटियोक में मिलते थे जो सीरिया में था। And it is from Antioch that Paul goes to Antioch of Syria, and he goes on to give the gospel of the kingdom through this path, from Antioch all the way to Cyprus, to Perga, to Antioch in Syria, Iconium, Lystra, Derbe. यदि आप ये नक्शे पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा पौलुस की यात्रा कौन से जगह से होके वो आगे बढ़ता गया। And similarly, he went after one town and the other. He was persecuted in one town. He left that town. He went to the next town. Then he left that town. He went to the next town, and then he. So that was his path. वो एक एक नगर से होते गए, जिस नगर पर उस पर विद्रोह किया गया या उस पर ऐसे ताड़नाएं आई, वो अगले नगर में चले गया, वैसे वो आगे बढ़ते गया। And even when he went back through the same path. वो वापस जब गया तो वही रास्ते से, वही मार्ग से वापस गया। Okay, so you need to understand the historicity. So this was his path that he always took. ये जानना जरूरी है कि वो यही मार्ग से ऐसे जाते गया आगे। Okay. So now we read in chapter 16 about a man called or a boy called Timothy. एक लड़के के बारे में हमने अभी पढ़ा प्रेरितों के किताब 1:16 में। So coming to why mention this first missionary journey? Why should I tell you about this first missionary journey? अभी पौलुस की जो पहली यात्रा है इसके बारे में आपको बताना जरूरी क्यों है ये बताएंगे। The most interesting fact is that Timothy was from this town Lystra. बहुत दिलचस्पी की बात यह है कि तिमुथियुस जो था वो लिस्ट्रा नगर में से था। Today it is in Turkey, it is by the name Kilistra. अभी वो टर्की में है और उसका नाम किलिस्ट्रा है ये जगह का नाम। It is south to the city of Konya. If you go to Turkey, there is a place called Konya, and it is 30 kilometers south to Konya. By the place it is known as Kilistra today. कोनिया के से दक्षिण में आता है और वैसे वहाँ पे उसको अभी किलिस्ट्रा करके नाम से बुलाया जाता है। So during this first missionary journey, Timothy is nowhere in the picture. जब पौलुस पहली यात्रा पे निकला तब तिमुथियुस का कोई जिक्र नहीं था वहाँ पर। So then what triggered a Timothy? अभी तिमुथी पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा? There's nowhere in the first journey that Timothy is mentioned. So जब पौलुस ने अपनी पहली यात्रा की तो वहाँ पर तिमुथियुस का बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। here lies the importance of family. अभी यह जानना बहुत जरूरी है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। Let us go to Acts 14. प्रेरितों की किताब 14 में जाते हैं। What triggered a Timothy? तिमुथी पर क्या प्रभाव पड़ा भी हम वो देखते हैं। Acts 14 verse 11. 14 का 11 पढ़ते हैं। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लिकुनिया की भाषा के ऊंचे शब्द में कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। Verse 11. 8 to 11. अच्छा 8 से लेके 11 तक पढ़ते हैं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुनता रहता था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और उसने ऊंचे शब्द में उससे कहा, अपने पांवों के बल सीधे खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लिकुनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हम मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। Okay, so I'll just give you a gist of what happened. अभी सारांश बताते हैं आपको। So Paul has been persecuted from Iconium. पौलुस पे ताड़ना हुई आइकोनिया नगर में। And he comes to Lystra. अभी वो लुस्त्रा में आया है। He is giving the gospel about the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुना रहा And है। here he is seeing a crippled man. और यहाँ पे एक निर्बल व्यक्ति को वो देखता है। And he is able to heal this man. और वो चंगा कर सकता है उस व्यक्ति को। And the story of this miracle और इस चमत्कार के विषय में goes to two people related to Timothy. तिमुथी से जुड़े हुए दो लोगों के पास इसके बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति जो ये चंगा हुआ है। Let us go to 2 Timothy 1:5.
दूसरा तिमुथियुस 1:5 पढ़ते हैं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूकिनिया में था, और मुझे निश्चय है कि तू भी वैसे ही है। Okay, we come to know that Timothy had a believing grandmother हम जानते हैं कि तिमुथियुस की एक नानी थी जो विश्वासी थी and a believing mother. और विश्वासी माता भी थी। Let us go again to Acts 16 प्रेरित 16 में जाते हैं फिर से, and read where Timothy is mentioned again. और तिमुथियुस का जिक्र कहाँ लिखा गया है वो वापस पढ़ते हैं। Acts 16 प्रेरित 16 एक से पढ़ते हैं। फिर वह दिबेर और लुस्त्रा में भी गया, वहाँ तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासिनी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। Go ahead. वह लुस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उस जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर 3 तक पढ़ा। So we read that this man Timothy had a godly believing grandmother and a believing mother. हम यह जानते हैं कि तिमुथियुस की जो नानी थी और उसकी जो माता थी दोनों विश्वासी थे, And his father was Greek. लेकिन उसका पिता जो है वो यूनानी था। And we went on to see that Paul had to circumcise him to further the gospel. That's a different topic. अभी हमने यहाँ पे देखा कि पौलुस को उसका खतना करना पड़ा, वो अलग ही विषय आ जाता है अब। But what revelation do you guys get? लेकिन अभी हमें इसमें से क्या प्रकाशन मिलता है जब हमने ये पढ़ा? We see that in spite of having a Greek father, उसका पिता यूनानी था, इसके बावजूद he was living in a cosmopolitan place वो एक ऐसे नगर में रह रहा था जहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, as Mumbai, जैसे हमारे मुंबई शहर में है। having all the kind of culture. सब ऐसे संस्कृति यहाँ पर एक साथ रहती है, वैसे ही वहाँ पर भी था। But the combination of a grandmother लेकिन उसकी नानी and a mother और उसकी माता is critical. बहुत ज्यादा गंभीर है। In every church, हर एक कलीसिया में we must not underestimate. हमने ऐसे ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इन चीजों If को। there are two godly believing people in a family, यदि एक परिवार में 2 ऐसे विश्वासी लोग हैं and if there is an unbelieving spouse, और उसका पति ऐसे हो सकता है कि वो विश्वास नहीं करता है, it doesn't matter. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। If you are believing, यदि आप विश्वास करते हो, do your job of feeding God's word. परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को सिखाना ये काम करो, Put in the seeds. अपने बीज बोने चालू करो। Sow in that young child's heart. उस ऐसे नौजवान या उस छोटे बालक में ऐसे अपने बीज बोने चालू करो वचन के बारे में। Whatever is your lot, जो कुछ भी तुम्हें कार्य दिया गया है, you do not know how God can use that person or that child. आप नहीं जानते हो कि खुदा उस बच्चे का इस्तेमाल कैसे करेंगे। You see, when Paul was persecuted in this place in his first missionary journey, Timothy was not there. जब पौलुस पर ताड़ना हुई, जब ये पहली बार उसने यहाँ पे यात्रा की, तब तिमुथियुस नहीं था, But a godly grandmother लेकिन उसकी जो विश्वासी नानी थी and a mother और माता may have sat on a table एक ऐसे हो सकता है कि एक मेज पर बैठे हो and must have told Timothy, और तिमुथियुस को हो सकता है कि ऐसे कहा होगा, have you heard of this man Saul or Paul? क्या तुमने इस पौलुस इस मनुष्य के बारे में सुना है? How he is talking about the coming Christ Jesus, the Messiah, the King. क्या तुम जानते हो कि वो कैसे यीशु मसीह जो मसीहा है या जो राजा है उसके बारे में बात कर रहा है? He seems to promise something that David told us, दाऊद ने जिस बात का हमें वचन दिया था वो उसके बारे में बात कर रहा है, the promised Messiah. जो विश्वास जो वैसे दिया गया मसीहा आने वाला है उसके बारे में। And don't you think, being having a Greek father, और तुम्हारा से यूनानी पिता है, Timothy must have thought, I am not circumcised. हो सकता है कि उसका पिता यूनानी है, इसलिए वो सोचता होगा कि मेरा तो खतना भी नहीं हुआ है। I hear about this Paul, the way he's fighting, his persecution, the way he's preaching the gospel, but how do I accommodate this? How do I accommodate myself into the commonwealth of this great nation? How do I come to know this Messiah?
मेरा तो खतना भी नहीं हुआ है, मेरा तो यूनानी पिता है, मैं पौलुस के बारे में जानता हूँ सब। वो जो प्रचार कर रहा है उस पे जो ताड़ना हो रही है उसके बावजूद वो प्रचार कर रहा है, कैसे मैं अपने आप को इसमें शामिल करूँ? These must have been his first questions when he must have heard about Paul's first missionary journey. जब पौलुस की पहली यात्रा हुई उस नगर से, हो सकता है उसके दिमाग में ये सारे सवाल आए होंगे। Timothy must have been 15 years old that time. हो सकता है तीमुथियुस एक नौजवान बालक 14-15 साल का हुआ होगा। Then, फिर what you need to remember is his first missionary journey happened in AD 47. ये पहली बार जानना जरूरी है कि पौलुस की पहली यात्रा जो थी वो AD 47 में हुई। So the reason why I am telling you all this is because this is based on history. हम आपको ये सारी तारीख क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये इतिहास में कहाँ है ये भी हम देख सकते हैं। Your faith is based on history. आपका विश्वास जो है वो इतिहास पर निर्भर है। There is a historical document. एक ऐसे ऐतिहासिक ऐसी किताब है। Your faith is on a very very firm foundation. आपका जो विश्वास है वो ऐसे बहुत ही ऐसे मजबूत गढ़ पे ऐसे बनाया गया है। Okay, after AD 47, Paul moves back. AD 47 के बाद पौलुस वापस चला गया। And these things are troubling Timothy. How do I accommodate myself? How do I accommodate myself? और तीमुथियुस के मन में यही विचार आने लगे कि मैं अपने आप को इन सारी चीजों में कैसे शामिल कर सकता I'm हूँ? from a I am not circumcised. मेरा तो खतना भी नहीं हुआ है। And in AD 50, और AD 50 में so before AD 50, there were some people from Judea यहूदिया से कुछ लोग who came to Antioch. एंटियोक आए। This is before AD 50, but this is what happened before the Jerusalem Council. यरूशलेम में जो सभा बैठी उसके पहले ये बात हुई। It's a very important event in time, the Jerusalem Council. यरूशलेम में जो सभा हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में। Okay, so these people they come to Antioch. ये सारे लोग जो है वो एंटियोक आए। And they say that it's very important for us to be circumcised. ये कहने लगे कि खतना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। And they wanted to bring in the law again. और वो फिर से व्यवस्था को लाना चाहते थे। You need to remember that this letter is directed to the church at Ephesus. So we'll come to that later. But we need to understand now, Timothy, what is happening with him. अभी पहले ये समझना जरूरी है कि तीमुथियुस के साथ क्या हो रहा है पत्री में आगे जाने से पहले। And what happened at the Jerusalem Council. और यरूशलेम की सभा में क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। So there was a very big fight here at Antioch. एंटियोक में एक बहुत बड़ा झगड़ा कैसे हुआ? Where Paul and Peter पौलुस और पतरस and James, और याकूब they fought out to say that no, Gentiles are not required to be circumcised to enter the kingdom of God. वो ये लड़ने लगे कि जो अन्य जाति में से उनका खतना होना जरूरी नहीं है कि वो ऐसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। And this was affirmed by all the body of believers. और जो सारे विश्वासी थे सबने उनके साथ सहमत हुए इस बात को लेकर। And when this message reached Timothy, और जब तीमुथियुस के पास ये खबर पहुंची, this motivated him. वो उत्साहित हुआ ये सुनकर। So during Paul's second missionary journey, पौलुस की जो दूसरी यात्रा थी, we are at Acts 16, अभी प्रेरित 16 में हमने वो पढ़ा। where we read it twice. There was a man called Timothy, जब तीमुथियुस नामक एक व्यक्ति था and Paul found this man Timothy. और पौलुस को ये व्यक्ति मिला तीमुथियुस। But before he found Timothy, this was the background of all the events that had occurred. तीमुथियुस को मिलने से पहले ये सारी चीजें जो पहले घटी थी ये हमने आपको बताई है। How God used a godly grandmother, a mother, कैसे खुदा ने एक विश्वासी माता और नानी दोनों का इस्तेमाल किया and the body of Christ और यीशु मसीह की कलीसिया को, to bring up a Timothy. ताकि एक तीमुथियुस ऐसे पैदा हो सके और आगे बढ़ सके खुदा में। Okay, so this was some of the background about Timothy. तीमुथियुस के बारे में या उसके जीवन के बारे में बताया आपको। Now we will move ahead to start with the letter. अभी हम पहले तीमुथियुस की एक किताब में जाते हैं। Since this is the first day, I will just do the first 4 verses today. ये आज पहला दिन है जो हम सिखा रहे हैं, तो पहले के 4 ही वचन पढ़ने वाले But हैं, we will do it in detail. लेकिन बहुत गहराई से करेंगे ये। Okay. So we need to understand again. We need to understand the history behind what is happening in this place. अभी इस स्थान पर क्या हो रहा है इतिहास में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Paul is writing to the church in Ephesus. पौलुस जो है ये पत्री एफिसस की कलीसिया को लिख रहा है। Now we are in somewhere around AD 67 or AD 66. अभी ये समय जब उसने लिखा तो AD 67-66 के आसपास था। Again, those who are taking notes can write this down because
time and again I'm mentioning the dates to you because these dates are very very important. हम आपको तारीख का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है तो लिख लो ये। Okay, so Paul is writing in AD 66 पौलुस AD 66 में ये बातें लिख रहा है, पत्री लिख रहा है to the church in Ephesus. एफिसस की कलीसिया को। Just 6 years back, 6 साल पहले, as you all know, जैसे आप सब जानते हो, Paul wrote a beautiful letter of Ephesians. पौलुस ने एक एफिसियों के लिए एक ऐसे पत्री लिखी। Just 6 years back, he had written a solid epistle. Ephesus. 6 साल पहले एक Ephesians. बहुत अच्छी पत्री लिखी थी उसने। In such a small span of time, इतने छोटे समय में what was the need to write another epistle? दूसरी पत्री क्यों लिखनी पड़ी उनके लिए? Why write Timothy? तिमोथी के लिए क्यों? Okay. So, firstly, I told you how Paul was close to Timothy, हमने आपको बताया कि पौलुस कैसे तिमुथियुस के बहुत करीब था and this is a letter. और ये तो एक पत्री है। When a friend writes to another friend, जब एक मित्र दूसरे मित्र को एक पत्री लिखता है, suppose I am writing to Steve, हो सकता है कि हम ऐसे स्टीव को पत्री लिख रहे हैं, I don't write. हम नहीं लिख रहे हैं। I am Vivian, working as a software developer at XYZ company. हाँ, हम अपने बारे में ऐसे नहीं लिखते हैं कि हमारा नाम विवियन है, हम यहाँ काम करते हैं, ये हमारा दर्जा है, I am the head of this department. हम इस डिपार्टमेंट के मुख्य हैं, I am sent by the authority in charge, जो जैसे मुख्य है उसके द्वारा भेजा गया हूँ, and so I am writing to you. और इसलिए मैं तुम्हें पत्री लिख रहा हूँ। Steve would laugh at me, स्टीव जो है ये पत्री से पढ़कर हंसेगा हम पर, but here we see लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं that Paul is adding a signature, पौलुस ऐसे एक बता रहा है अपने बारे में कुछ, especially to a church एक ऐसी कलीसिया के लिए that is so close to him. जो उसके बहुत ही करीब है। There was no need to write an apostle, एक प्रेरित लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं था, but we see लेकिन हम देखते हैं Paul starts, पौलुस ऐसे शुरुआत करता है। he says, Paul, an apostle of Jesus Christ. पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में, Okay. यीशु मसीह और हमारी आशा में उद्धार का मसीह है। Which means this letter is now serious. इसका ये अर्थ होता है कि ये पत्र गंभीर है। This is not a personal letter, अभी ये व्यक्तिगत पत्र नहीं है। though in some accounts there are some personal mention, हो सकता है कहाँ पे ऐसे जिक्र किया गया है व्यक्तिगत तौर पर, but this letter is a pastoral letter, लेकिन ये एक ऐसे पासवान होके ये पत्री लिख रहा है, and Paul is emphasizing और पौलुस खास तरीके से ये लिख रहा है his apostolic authority, कैसे वो एक प्रेरित है। and this letter और ये पत्र is not only to be read by Timothy, सिर्फ तिमुथियुस के लिए नहीं है, but everybody at the church in Ephesus लेकिन एफिसस की कलीसिया के सारे लोगों के लिए है ये पत्र, and the churches around Ephesus. और उसके इर्द गिर्द की कलीसियाओं के लिए। Okay. Now the reason to write this letter, अभी ये पत्र लिखने का मुख्य कारण क्या है? because in those days क्योंकि उन दिनों में there was false doctrine that was being spread. झूठा प्रचार किया जा रहा था इन कलीसियाओं में। People were trying to get the Christians लोग ऐसे कर रहे थे कि जो मसीह में आए हैं वो लोग under the law of Moses. व्यवस्था के अधीन लाना चाहते थे उन्हीं लोगों को। But we see that the law is important. It's not that the law has been demolished. ऐसे नहीं कि व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है और उसको ऐसे नाश किया गया है, So वो बहुत therefore- ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। So therefore we will go on to see why the law is required and so on, but that is later. व्यवस्था क्यों ये जरूरी है वो हम आगे देखेंगे। But the objective to write this letter लेकिन इस पत्र को लिखने का मुख्य कारण क्या है was that the leaders of the church कि जो कलीसिया के जो अगुवा है would know how to lead a church वो यह जान सके कि कलीसिया की अगुवाई कैसे करनी है and how to be an effective Christian. और कैसे हम मसीह में बहुत ज्यादा ऐसे प्रभावशाली बन सके। Okay? So Paul emphasizes his apostolic authority. तो पौलुस बताता है कि वो कैसे एक प्रेरित है। He goes on to say, वो आगे बढ़ता है, by the commandment, can you read 1 Timothy, verse 2 us? पहला तिमुथियुस का पहला पढ़ रही हूँ। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। Okay, so he says, Paul, an apostle of Jesus Christ, यीशु मसीह का प्रेरित कहता है वो खुद को, by the commandment of God,
खुदा की आज्ञा से, परमेश्वर की आज्ञा से। So the word commandment, by the commandment of God is very important ये आज्ञा जो दी गई है वो जानना बहुत जरूरी है। because this means इसका ये अर्थ होता है it is the command behind a commandment. उसको एक ऐसे आज्ञा दी गई है, इसीलिए वो ये कह रहा है। Okay, so this is not what Paul is wanting the church to know, पौलुस ऐसे नहीं है कि पौलुस कहता है कि कलीसिया यह जाने, but he has received this command to give this command to the church, लेकिन उसको किसी और के द्वारा यह आज्ञा मिली है ताकि वो जाके कलीसिया को आज्ञा दे सके। and that is why it is very important for the church at Ephesus इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एफिसियों की जो कलीसिया है and this church और हमारी कलीसिया to read this letter कि यह पत्र not as it is from Paul ऐसे नहीं पढ़े कि ये पौलुस की ओर से है, but from God himself. लेकिन खुदा की ओर से है, ऐसे पढ़ना जरूरी है। Okay, we go forward. आगे बढ़ते हैं। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior. हमारे उद्धारकर्ता। Let us take, so if you read, there are several verses in the New Testament नए वचन में ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं where the word Savior is associated to God उद्धारकर्ता जो है वो परमेश्वर के साथ जोड़ा गया है as Savior, कि परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता है, the God who saved them from Egypt, जो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से बचाया, Jehovah. यहोवा। But we see that लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं Paul is appending पौल ऐसे कह रहा है God our Savior हमारे उद्धारकर्ता and the Lord Jesus. और यीशु मसीह। So Paul पौलुस is making the God of Israel जो इजराइल का परमेश्वर है and Jesus Christ और यीशु मसीह equal. दोनों को समान ऐसे कर रहा है। Paul writes to the church at Ephesus पौलुस एफिसियों की कलीसिया को लिखता है by a commandment of God खुदा की आज्ञा के द्वारा उसको लिख रहा है, which is backed जिसके पीछे by God the Father and God the Son. परमेश्वर पिता और परमेश्वर और पुत्र भी है इसके साथ। Okay, so now we know that this is a very strict letter and it is a very serious letter because in those days false doctrine was being spread. अभी हम जानते हैं कि ये पत्र बहुत ही ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत शिक्षाएं फैल रही थी वहाँ पर। Paul then adds a small line पौलुस एक ऐसे छोटा शब्द वचन लिखता है just to soften his introduction, अपने ऐसे जो लिख रहा है उसको ऐसे प्यार से बताने के लिए, which is our hope. जो हमारी आशा है। Okay, so again it's very important to understand the historicity or what is the historical background of this place, अभी यह जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ का इतिहास क्या है इस नगर का। because hope is a very very crucial word to Christians, आशा जो है वो कृषि लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, and not only to Christians but to anybody, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए भी आशा ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। because you live your current day हम आज का दिन जो हम जी रहे हैं based on what you hope. हम किसी चीज की आशा करते हैं इसलिए हम आज का दिन जी रहे हैं। Your hope fashions your current day. आपकी जो आशा है उस हिसाब से हम आपका आज का जीवन हम जीते हैं। If you are continuously under the burden of trying to be ambitious, trying to be this, trying to be that, from your countenance you understand that you barely have any hope because you are just trying to make ends meet. आप पूरी तरीके से यदि किसी चीज के दबाव में जी रहे हो या कुछ हमें आपको पाना है वैसे आप जीते हो तो आपको देखकर आपका हाल देखकर ही पता चलेगा कि आप ऐसे रोजमर्रा के लिए ही जी रहे हो When बस। any stranger, anybody comes to meet you, the first thing, arey that person cut me short of this, I had to pay a challan there, I had to do this. I mean your words are an example or they give an evidence to what kind of hope you have. जैसे आप किसी के साथ बात करते हो, आप क्या क्या बात करते हो, उससे पता चलता है कि आपकी आशा क्या है। Therefore this word hope is very very important. इसलिए आशा ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Now coming to the historicity of this place. अभी इस जगह के इतिहास के बारे में, So in that time Nero was the person in charge, उस समय नीरो ऐसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था and what he did is और उसने क्या किया, he set districts on fire वैसे नगरों को ऐसे आग लगा देता था just to make a palace for himself, अपने लिए ऐसे एक महल बनाने के लिए, and very cleverly और बहुत ऐसे चतुराई से he put the blame और इल्जाम डालता था on a small class of people एक छोटे ऐसे लोगों के गट को, known as Christians. मसीहों पे वो इल्जाम डालता था। So Paul is writing अभी पौलुस लिख रहा है in a time एक ऐसे समय में where Christians are being banged and left, right and center just slaughtered.
जो मसीह में आए उन लोगों को बहुत सारी ताड़ना हो रही थी, मार डाल दिया जा रहा था। And just couple of years, and the fires went on for not less than 5 to 6 days. 5-6 दिन तक वो जो आग लगाते थे वो वैसे ही चलते रहता था। So you must know the intensity of a city or a district being on fire for 6 days. तो आप ये समझ लो कि एक नगर को यदि आग लगे और वो 6 दिन में आग जलती तो सोचो कैसी आग लगाई गई। And the blame of those fires to be put on a small sect of people, merely slaves. और एक ऐसे लोगों पर इल्जाम डाल रहे थे जो जैसे दास के जैसे रहते थे। It was impossible for them to survive in such a place. असंभव था कि वो ऐसे स्थान पर ऐसे अपना गुजारा कर सके। In fact, the persecution became state-sponsored. इतना उन पर ताड़ना हुई कि जो सरकार थी उसके द्वारा ही उन पर ताड़ना हो रही थी। The state sponsored to bang these people. तो सरकार के द्वारा ताड़ना हुई कि हाँ तुम ऐसे करो, उनके साथ पैसे दिए। In such a place, ऐसे नगर में Paul writes, पौलुस लिखता है, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, which is our hope. यीशु मसीह को अपना ये बताता, आशा बताता है। Not only is this state-driven persecution going on, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बस उन पर सिर्फ ताड़नाएं हो रही हैं। a couple of years later, कुछ सालों के बाद a Jewish war breaks out with the Roman government. वहाँ पर ऐसे युद्ध भी हो गया। Even रोमियों more के साथ। even more burden on the Christians. और ज्यादा उन पर ताड़ना हुई फिर उसके वजह से। So the church has survived 2-3 times. कलीसिया ये सारी चीजों से गुजर कर हो चुकी थी। This was the hope that they carried with them. उनमें ये आशा थी जो उनमें बनाए रखती थी। What was this hope? अभी ये आशा क्या है? Let us read from Titus 2. तीतुस 2 से पढ़ते हैं। Titus 2 verse 13. 2:13 और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। Dear church, प्रिय कलीसिया, take heed. बाट जोते रहो। If a small sect of people could come through such adverse circumstances, एक छोटे से ग्रुप के लोग ऐसे अगर उन पर इतनी सारी ताड़नाएं हो रही थी, then what is your circumstance? तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो क्या है? What is your burden? आपकी क्या ऐसे हालातें हैं? You have the flexibility of even gathering at a place, आपको तो ऐसे भी ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिल सकते हैं कलीसिया में, listening to the word of God openly, खुलकर ऐसे वचन सुन सकते हो। no persecution from anywhere. कहीं पर भी ताड़नाएं नहीं आ रही है हम पर। You are not at all scared. आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं But हैं। see the small sect of people. लेकिन ये लोगों के ऐसे ग्रुप को देख लो। It is this hope ये आशा that our Lord would return. कि हमारा परमेश्वर वापस आने वाला This है, took them through. ये उनके मन में था, ये आशा थी, इसलिए वो आगे बढ़ सके। No matter what circumstance you are facing in life, चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, have this hope in you अपने में ये आशा रखो that your investments and everything that you do here कि आप जो सारी चीजों में यहाँ पर निवेश कर रहे हो is temporal. वो बहुत ऐसे तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है, But have this hope लेकिन ये आशा रखो that our Lord will return, कि हमारा परमेश्वर दोबारा आने वाला है। and therefore do profitable investments इसीलिए जो आप निवेश करते हो ऐसे करो कि आपको लाभ मिले उसमें which will से, secure your hope जो आपकी आशा को आगे बढ़ा सके in Christ. यीशु मसीह में। Okay? Now we go to the second verse. अभी दूसरे वचन में जाते हैं। And to Timothy. पहला तीमुथियुस का 1-2 पढ़ते हैं। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास से मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। Okay? So he is writing to Timothy. अभी वो तीमुथियुस को लिख रहा है ये पत्र। Very shortly, कुछ समय के लिए he mentions this word Timothy. तीमुथियुस ऐसे जिक्र किया गया है, And it's very important to know और ये जानना बहुत जरूरी है that somewhere after his second missionary journey, उसकी दूसरी यात्रा के बाद he spent 3 years in Ephesus. 3 साल पौलुस ने वहां पर गुजारे एफिसुम के साथ, And he remembers those years और उसको वो सारे समय का ऐसे याद आ रहा था, where he went town after town, town after town. नगर नगर होके वो आगे कैसे बढ़ रहे थे, And how Timothy
और कैसे तिमुथियुस and his colleagues और उसके सारे दूसरे सहभागी were with him. उसके साथ थे। That's why he writes, इसलिए ऐसे लिखा है यहाँ पर, my own son in the faith. मेरा सच्चा पुत्र, विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र। The word son here पुत्र यहाँ पे जो वचन शब्द है means teknon. टेक्नॉन ऐसे है, It is the same as having your own son. ऐसे है कि उसका खुद का बेटा हो। This is a relationship that Paul shared with Timothy. ऐसा रिश्ता था पौलुस का तिमुथियुस के साथ। Because as far as the word is concerned, जैसे वचन में लिखा गया है, we know that Paul was not married. हम जानते हैं कि पौलुस की शादी नहीं हुई थी, But through this work for the kingdom, लेकिन राज्य के लिए जो कार्य कर रहा था, he found a son for him, और अपने आप के लिए उसने एक बेटा पाया, like his own son. अपने खुद के बेटे के समान, He says, my own true child. अपने खुद के बेटे के समान। Okay? Then Paul goes to add something that's very unique in this epistle. और पौलुस यहाँ पे कुछ बहुत ही अनोखा लिखता है। He says, unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. You see, no other epistle mentions the word mercy. किसी और पत्री में हमने कभी दया ये वचन शब्द ऐसे देखा नहीं है। Every other epistle has only the two words, grace and peace. जो दूसरे पत्री जो लिखे हैं पौलुस ने, वहाँ पर सिर्फ ये दो शब्द ऐसे अनुग्रह और शांति Then है। why mention mercy? तो यहाँ पे दया का जिक्र करना क्यों जरूरी है? Grace, mercy, and peace is mentioned only in the two pastoral epistles अनुग्रह, दया और शांति सिर्फ दो पत्रियों में लिखा है, of Timothy and Titus. तिमुथियुस को और तीतुस को जो लिखा है इन दोनों पत्रियों में। Why mention the word mercy? लेकिन दया का लिखना जरूरी क्यों है? Okay. We need to understand that grace and peace, यह जानना जरूरी है कि अनुग्रह जो है और शांति they are more spiritual in nature. ये आत्मिक तौर से होते हैं, Whereas mercies, लेकिन दया जो है they are temporal in nature. वो कुछ समय के लिए रहता है। Okay? You may have a good job, a godly wife, and a permanent settlement, but those are not blessings. हो सकता है आपकी एक अच्छी नौकरी हो, ऐसे विश्वासी पत्नी हो और बाकी सारी चीजें हो, लेकिन वो आशीषें नहीं है। This is the difference between blessings and mercies. ये है कि आशीषें और ऐसे जो दया है, इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? Some person may be working here at a low place, some person may be working at a high place, but these are not blessings. हम कहाँ अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये आशीषें नहीं है हमारे लिए। You may have X income, that person may have Y income, हो सकता है आपका वेतन कुछ हो, किसी और का कुछ और हो, but these are not blessings. लेकिन ये आशीषें नहीं है। If you are in Maharashtra, you are able to hear the word of God without any persecution. हम महाराष्ट्र इसमें रहते, राज्य में रहते, इसलिए हम बिना कोई ताड़ना से वचन सुन पा रहे हैं। But if you go to Uttarakhand and all that places, it's very difficult to listen to the word of God. लेकिन उत्तराखंड या दूसरे शहरों में जाएंगे तो बहुत ज्यादा कठिन होता है कि हम वचन सुने। These mercies are according to the will of God and His wisdom. ये जो दया है वो खुदा की इच्छा के अनुसार और खुदा की बुद्धि के अनुसार हमें मिलती रहती है, And they are temporal in nature. और वो थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। If they are not blessings, और यदि आशीषें नहीं हैं, then what are blessings? तो फिर आशीषें क्या है? Let us see what are blessings according to the word of God. अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं आशीषें क्या क्या है। Let us go to Matthew chapter 5, मत्ती 5 में जाते हैं, verse 1 onwards. मत्ती 5:1 से पढ़ते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। According to the Bible, these are blessings. वचन के अनुसार ये आशीषें हैं। When you are persecuted for the word of God, it is the blessing. परमेश्वर के वचन के लिए जब आप पर ताड़ना आती है तो वो आशीषें हैं। You have the mercy of a good home, a good car. It doesn't matter. But are you willing to be blessed by undertaking a persecution for God? आप पर हो सकता है अलग अलग दया है, इसकी वजह से आपके पास अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्या आप ताड़नाएं झेलने के लिए तैयार हैं? Blessed are the meek धन्य है वे जो मन के दीन हैं, in your very homes. अपने खुद के घरों में। It's okay if my way doesn't go on. ये चलेगा कि यदि मेरी बातें न सुनी जाए। When you keep quiet, जब आप चुप बैठते हो, this is a blessing. ये आशीष है। When you subdue your own wants or your own directions. अपनी खुद की इच्छाएं जब आप से लेकर चुप बैठ जाते हो, When you esteem others above yourselves. जब आप दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो, These are blessings according to the word of ये God. वचन के अनुसार ये सारी आशीषें हैं। Okay? So never ever compare yourself just because that person is doing well and you may not be doing as well. These are mercies and they are temporal in nature. कभी ऐसे तुलना मत करो कि दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है और हम ऐसे नहीं कर रहे। कुछ ही समय के लिए रहता है सारी चीजें। But these blessings लेकिन ये सारी आशीषें जो हमने अभी पढ़ी, are eternal. ये अनंत काल के लिए है। They are never going to end. ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। They are forever. ये हमेशा रहेगी आपके साथ। Another part of your blessings. आपके आशीषों के से दूसरा भाग। Let us go to Ephesians chapter 1 verse 3. एफिसियों 1:3 पढ़ते हैं। एफिसियों 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। You see, all our blessings are spiritual in nature. हमारी सारी आशीषें जो है वो आत्मिक है। They are not temporal. वो ऐसे कुछ ही समय के लिए नहीं है। Okay? And these blessings और ये सारी आशीषें जो है are forever secure in Christ. यीशु मसीह में हमेशा रहती है हमारे साथ। Faith, hope, love, joy, आशा, विश्वास, प्रेम, the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जो फल है, They are forever secure. ये हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। That's why we must pursue these things. इसलिए हमने इन सारी चीजों के पीछे जाना जरूरी है। Okay? So here Paul's signature ends in the first two verses. पौलुस जो अपने बारे में बता रहा है वो पहले के 2 वचन में बता देता है। From now on, अब से इसके आगे he will start to tell how to lead an अभी वो यह बताना चाहता है effective church and how to become an effective Christian. सही तरीके से कैसे कलीसिया की अगुवाई करनी है, वो यह बताता है। But again before that, लेकिन उसके पहले he is going to address वो यह बताना चाहता है a very very crucial thing. एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में। Okay? Let us read verse 3. पहला तीमुथियुस 1:3 पढ़ते हैं। जैसे मैंने मकुदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफिसियों में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षाएं न दे। So we see at the end of his third missionary journey, अभी हम ये देखते हैं पौलुस की तीसरी यात्रा के अंत में he stations Aquila and Priscilla at Ephesus, एफिसस में वो अक्विला और प्रिस्किला को रख देता है and then he goes on to Macedonia. और वो मकुदुनिया की ओर जाता है। And from Macedonia, he is writing this letter to the people in Ephesus. वहां से वो इन लोग एफिसियों के लोगों को ये पत्री लिख रहा है। Okay? Then he goes on to counter a very very crucial thing in the church. अभी कलीसिया में एक बहुत गंभीर विषय के बारे में वो बात कर रहा है। That is how to counter false doctrine. जो झूठी शिक्षाएं चल रही है उसका कैसे विरोध करना है। Even before he goes on to say how should a church conduct itself, how should be a Christian, how you should do this, what is the law and everything, he goes on to say not to even give heed to false doctrine. वो ये बताने से पहले कि कलीसिया कैसे आगे बढ़नी है, हमारा विश्वास कैसे आगे बढ़ना है, वो ये कहता है कि ये सारी बातें सुननी भी नहीं चाहिए हमने। That is how crucial it is for the church
to not endure false doctrine. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो सारी झूठी शिक्षाएं चल रही है हमने उसे कान भी नहीं देना चाहिए. Even before you learn how to heed to become a good Christian and everything, you need to understand that enduring false doctrine or misinformation is very, 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 very critical to the church. मसीह में अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाना है और बाकी की सारी चीजें जानने से पहले झूठी शिक्षाओं को कैसे हमने नजरअंदाज करना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. I'll give you an illustration. अभी एक उदाहरण देते हैं आपको. So once, this was in a very, very cold country, एक बहुत ऐसे ठंडी जगह पे ये बात हुई है. and a mother and a child, एक माँ और एक बेटा very new to the place, उस जगह पे बहुत ही से नए थे. and they boarded the train, उन्होंने एक ट्रेन लिया and they were very nervous. और वो बहुत ही से व्याकुल हो रहे थे. And at the same time, there was a salesman in the train. और उसी समय ट्रेन में कुछ बेचने वाला आया था. I'm not against any salesperson, but this is just an illustration. अभी ये खाली एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं. So he comes to this woman. तो वो इस महिला के पास आता है. He says, "Don't worry, I will help you to get down at this stop that you are looking for. वो कहता है उससे कि डरो मत, तुम्हें जहाँ पे उतरना है मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ उतरना I है. travel by this route, left, right, and center, so don't worry." मैं तो ये रूट पर प्रतिदिन ऊपर नीचे करता हूँ इस गाड़ी में, तो डरो मत. So he tells this woman after some point of time, "Get down at this stop with the child." और वो कुछ समय के बाद वो महिला को कहता है कि स्टॉप पर उतर जाओ अपने बेटे के Remember, साथ. it's a very snowy area in minus degrees. ये जान लो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है, -डिग्री में चल रहा है, तो बर्फ वगैरह सब रहेगा वहाँ पर. And this woman and this child, they get down the train, और ये माता और अपने बेटे को लेकर वहाँ उतर जाती है and the train goes on. और गाड़ी निकल जाती है. उसके The बाद conductor of the train comes to this salesman, कंडक्टर जो है वो उस सेल्समैन के पास आता है जो बेचने वाला है उसके पास. and he tells the salesman, "This woman and a child were supposed to get down on this stop. Where are they?" तो वो पूछता है कि ये महिला अपने बच्चे के साथ किसी और स्टॉप पर उतरने वाली थी, वो कहाँ चले गए. He tells them that they got down there लेकिन वो जो बेचने वाला था उसने कहा कि वो तो वहाँ पहले ही उतर गए because the train stopped. क्योंकि गाड़ी रुक गई. But the TC of the train tells him the train stopped because there was a signal, not because it was a stop. तो वो टीसी कहता है उससे कि वहाँ पे वो क्यों उतरे, वहाँ पे तो ऐसे गाड़ी रुकी क्योंकि सिग्नल लगी थी, स्टॉप नहीं था. Immediately he backs up to that station and he finds the woman and the child dead. और फिर वो वहाँ पर ऐसे पहुँच जाता है और वो देखता है कि वो महिला अपने बच्चे के साथ ऐसे मर गए. This is how crucial false doctrine is in the church. इतना गंभीर है कि पौलुस की जो शिक्षाएं हैं वो कैसे ज्यादा कलीसिया में महत्वपूर्ण है. And it's very, very important for all of us in these times और इस समय में, इन दिनों में when there is so much information going out इतनी सारी जो शिक्षाएं चल रही हैं, all over the web. You have some information about someone, this person, that person, but it's very, very important to have discernment. इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही क्या है गलत क्या है हम ये पहले जाने. Because sooner or later you are going to spread that propaganda inside the church. क्योंकि आज नहीं तो कल वो जो चल रहा है बाहर वो कलीसिया में भी लेके आ सकते हो. So before you even become a Christian or you want to lead a church or something, the pastors or the leaders of the church, it's very, very important for you guys or for us that no false doctrine must be entertained in the church. कलीसिया की अगुवाई करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि झूठी शिक्षाएं क्या क्या है और इसे कलीसिया में आने नहीं देना चाहिए. And this is not my commandment. और ये हमारी आज्ञा नहीं है. This is a commandment from God the Father and His Son. परमेश्वर पिता और उसके बेटे से आई है ये आज्ञा. This is a commandment for the church. ये कलीसिया के लिए आई है ये आज्ञा. Do not endure false doctrine. झूठी शिक्षाओं में ऐसे आगे मत बढ़ो. Do not endure any other doctrine. कोई किसी और शिक्षा में आगे मत बढ़ो. If it's not in the Word of God, do not endure it. वो परमेश्वर के वचन में यदि वो जिक्र नहीं है तो उसको मत मानो. Going ahead. आगे बढ़ते हैं. Not only are you not supposed to endure these doctrines. इन्हें नहीं मानना ही नहीं है. Let us go ahead to verse number 4. पहला तीमुथियुस 1:4 पढ़ते हैं. और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिन्हें विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है. Okay? Not only are you to not endure false doctrine, but you are also. So the word that is used here is genealogies. वंशावलियों के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर. Questions about genealogies. वंशावलियों के बारे में सवाल. So these genealogies अब ये जो वंशावलियाँ हैं are not genealogies that are mentioned in First Chronicles.
पहले जो इतिहास में लिखा गया है उनके बारे में नहीं है or ये, in the book of Matthew. या मत्ती में जो लिखा है वो उसमें नहीं है। Any questions in the church regarding these genealogies are important. सब यदि कलीसिया में कोई भी सवाल उठाता है इन सारी वंशावलियों को लेकर तो ये गंभीर बातें हैं, They must be addressed. तो हमने इनका जिक्र करना जरूरी है। Then what kind of genealogies is Paul talking about तो here? पौलुस यहाँ पे किन वंशावलियों के बारे में बात कर रहा है? See, in those times, देखो उन दिनों में there were agnostics. So then, वो टाइम पे एक छात्र के लोग थे जो कहते थे कि ये जो है वो खराब है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे वो जो चर्च के लोग थे उनसे पूछते थे. So they would ask the questions to these Christians, and unnecessary for some nonsense doctrine or something, they would get these church members involved. कुछ बकवास बातों के लिए कलीसिया के लोगों को इन सारी चीजों में ऐसे व्यस्त करते थे, Even which is happening today. आज भी वही चल रहा है। Why we don't have Christmas mass? Why we don't have this? Why we don't have that? Why we are not keeping this that time? Why we are not? These people have no inclination to the word of God. They have no idea about the power of God, and we still entertain these questions. ये सारी जो बातें वो करते हैं परमेश्वर के विषय में कुछ रहता ही नहीं, उसके वचन के अनुसार These नहीं रहते, questions- लेकिन ऐसे गड़बड़ी के लिए वो लेके आते हैं। Such questions must not be entertained by any, even in the youth. नौजवानों ने भी ये सारी चीजों के बारे में से मन नहीं लगाना चाहिए इन बातों में। You have a colleague in your college, they say, "Arey, why Jesus advocated drinking in Cana? Why he didn't choose?" These questions are not to be advocated or even entertained. ये सारे सवाल जो है कि यीशु मसीह ने तो कनान में ऐसे ये दाखरस बनाया, तो फिर ऐसे पीने को क्यों नहीं देते? सारी चीजों के हमें नजरअंदाज करना है, Because they don't have any idea about the power of God, and they are only meant to trap you. परमेश्वर के सामर्थ के विषय में वो कुछ नहीं चाहते, वो बस आपको फंसाना चाहते हैं। You and I are not meant to give heed to such questions either. आपने और हमें ये सारे सवालों का ऐसे जवाब नहीं देना है। Yes, but if there is a logical question or a reason where somebody is genuinely wanting to know how did Jesus come to David? How was Mary related to Jesus Christ? How was Joseph related to Jesus Christ? Why are these generations not mentioned? Why are these generations mentioned? Why is only the generation from Adam to Zedekiah mentioned? Such questions are to be entertained. यीशु मसीह कैसे दाऊद से आए, उसकी वंशावली के बारे में अगर यदि कोई सवाल पूछे तो हम ये सारी चीजों का सवाल का जवाब देना जरूरी है, Because these are genuine questions. क्योंकि ये ऐसे सही सवाल है। Okay? And very importantly, these questions do not edify a very godly living. और ये सारे सवाल यदि कोई पूछेगा तो ऐसे समझ में नहीं आता है कि वो परमेश्वर में है या नहीं वो व्यक्ति। So if you are interested and somebody drops a message on WhatsApp and tells you, "Arey, you know this, you know that," nothing to do with the word of God, absolutely no inclination towards living a godly life. It's not going to edify you. It's not going to edify that person. That person is only wanting to stir you up for some debate. You are not to entertain those questions. This is what the word of God says. यदि कोई आपसे कोई सवाल पूछता है जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ नहीं है Again, और I'm- ऐसे आपको उकसाने के लिए पूछना है, तो हमने उसे कान नहीं देना है। Even before it is said how you need to lead a church and how to be a Christian, these things are placed first. कलीसिया की अगुवाई कैसे करनी है उससे पहले ये सारी चीजों का जिक्र किया गया है यहाँ पर। Okay, so I'll close here. Next time I will continue with Paul, what Paul has to say. अगली बार हम आपको और समझाएंगे पौलुस क्या कहना चाहते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you Lord for this letter, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पत्री के लिए। Thank you Lord that you sent Paul to Macedonia, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पौलुस को मकदूनिया में भेजा, That he could write this letter to Timothy कि वो तिमुथियुस को ये पत्र लिख सके, and all the young Timothys और सारे जो नौजवान तिमुथियुस है सारों को who are young, Lord, जो नौजवान है and who would lead a church, Lord. और जो कलीसिया उनकी अगुवाई करने वाले हैं। This is a book for them, Lord. ये किताब जो है ये उनके लिए है, That they would take caution, Lord. ताकि वो सावधानी बरते, That they would not be stirred ताकि वो ये सारे बेफिजूल की चीजों में ना पड़े, to false doctrine, जो गलत शिक्षा है उनमें, to false genealogies. जो गलत वंशावली है उनमें। I pray for your flock, Lord. हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं Especially in these times, Lord, इस समय में, when there is so much perversion, Lord.
जब कितने सारी बुरे चीजें चल रहे हैं सारी ओर and there is so much materialism, Lord. और कितनी सांसारिकता आई है, It is so easy, Lord, कितना आसान हो गया to है get bogged down, Lord, कि ऐसे कोई उन सारी चीजों में फंसे that we forget our hope, Lord. और हम अपनी खुद की आशा ही भूल जाए। Even devout men, Lord, जो आप में ऐसे स्थिर व्यक्ति है lose their hope, Lord. अपनी आशा गंवा रहे हैं, This great hope, Lord. ये महान आशा जो है, Lord, strengthen your church, Lord. अपनी कलीसिया को मजबूत बनाओ, Strengthen your church, my Lord. अपनी कलीसिया को मजबूत बनाओ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।